In last class, we discussed about the branding and what are the brand development, right? We studied about the 5 strategies, and after that, I guess we completed whole branding topic, right? So today we are going to start the pricing decision. That is the next second P of marketing mix, right? So firstly, I just want to ask that what is the meaning of brand development and what are those 5 strategy which we studied in the last class? Who is going to elaborate it to me? कौन मुझे बताएगा about the product development? All the type of 5 strategy we discussed. What are those? Yes, Priya. Ma'am, first is brand extension. In this new brand is introduced in the company with the same brand name. And the second one is line extension. In this the Priya new with example, elaborate me. The first one, brand extension. Tell me the example of that. Example of brand extension is Maggie brand or just like Lakme products. Second, line extension. In line extension, a new product is introduced in the company with a little bit change in that, like changing packaging, changing size or changing shape. Third one is multi-brand. What is the example of line extension? What is the example of line extension? Example of line extension is Bata shoes. Which various types of shoes are there, like office shoes, sports shoes, casual shoes, this thing. And third one is multi-brand. In this company introduced the additional brand in the same in the same category, like Hindustan Unilever introduced the different types of brand of soap like Dove, Dettol, Lifebuoy, and all that. Fourth one is new brand. In new brand, when company introduced the new product, and they feel that they have to introduce that product with the another brand name, then they do that. Like Tata introduced the Tanishq or Titan and these things. Another is part of new brand, right? New brand. Yes, ma'am. And another one is product flanking. And where is product flanking? Ma'am, I already told that. Like HUL introduced the different brand of soap like Dove or Lifebuoy, Lux, and all that. Okay. And in product flanking, company introduced the brand with their different shape, size, or packaging with different price. Like sachet pack of different shampoos. Like Dove shampoo, we also get sachet pack of ₹3, which is available in the rural areas also. In product flanking is the basically in this the company is introducing the same type of product in different package shapes and price, right? It means that if we are able to purchase the wheel of 1 kg, we can also purchase 200 gram, we can also purchase 500 gram. Means it is available in the different sizes and different price, right? Means small packets are available, some suitable for the family, some suitable for the bachelors, right? Some it's totally depend upon the basically demand. ठीक है ना, डिमांड के हिसाब से परचेज होता है. प्रोडक्ट फ्लैंकिंग वेयर द क्वांटिटीज आर चेंज of the same categories, like its availability is in the different packets, different grams. ठीक है, 500 ग्राम का भी मिलेगा, 200 ग्राम का भी मिलेगा, 100 ग्राम का भी मिलेगा. That is known as product flanking. Now the next question is that what rural
areas, or we can say what kind of branding strategy company used in the rural areas? Who is going to tell me about it? Rural areas में कौन तरीके किस तरीके के branding strategy को use किया जाता है? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Ma'am, mouth publicity. Hmm? Second one is using wall method. Hmm? They also develop the marketing strategy in rural area. And third one is they by using trade fairs and trade mela also. Hmm. Ma'am, only 3 I have remembered. यस, ट्रेड फेयर, मेलास, फिर वहां का जो उत्सव होता है, हाट लगते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जो डेली के वहाँ मार्केट्स वगैरह जो लगते हैं, ठीक है, वहां पर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रूरल एरियाज के जो लोग हैं, रूरल पीपल है, ज्यादातर गैदर होते हैं, ठीक है, एंड द वर्ड्स आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन rural areas because so many companies which we already discussed like Sampurna जो नाम है basically LG ने customized television को introduce किया था, they use Sanskrit word Sampurna, right? And like for any statement and the words are very normal and common होना चाहिए, हिंदी में ज्यादातर होने चाहिए, ठीक है, so the local people are able to understand it. Even अभी तो regional rural areas जो होते हैं आपके regional rural जो areas है वहां पर, उस हिसाब से लैंग्वेजेस के हिसाब से अब तो आपको एप्स में भी मिल जाएंगे, लाइक यू विल फाइंड सो मेनी लैंग्वेजेस, आपको ऐप वगैरह में भी मिल जाएंगे, जैसे अभी तो खैर स्टार्ट हो चुका है, अमेजोन वगैरह हो गया, या ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर आप देखिएगा तो आपको सारे लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तमिल में, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, फिर मराठी में, यू विल गेट द मल्टीपल लैंग्वेज, राइट? बट इन अ पर्टिकुलर एरिया, अगर हम रीजनल रूरल एरियाज की बात करें तो अभी स्टार्ट हुआ है ये इनिशिएटिव भी लेना, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद हमें जो बिहार में भी अगर मैथिली, भोजपुरी लैंग्वेजेस में भी आपको इजीली एडवर्टीजमेंट देखने मिले, बल्कि ऐसा है, यू विल एबल टू सी द एडवर्टीजमेंट इन भोजपुरी एज वेल, राइट? सो दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द वे ऑफ ब्रांडिंग इन द रूरल एरियाज. Today's topic is pricing. Okay, so what is the meaning of, when we started the talking about pricing, then what is the meaning of price? Price का मतलब क्या होता है? What is the meaning of price? Price क्या होता है? The price is the amount which we are paying to purchasing some goods or services, or which we are using for exchanging the value, right? यानी कि अगर हम मार्केट जाते हैं और हम एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं, तो for that particular packet of biscuit I just need to pay the amount, and that is the price which the company is taking from the consumer in return of the goods and services. यानी goods और services अगर कोई कंपनी देती है तो उसके रिटर्न में जो अमाउंट लेती है, that is known as the price. Price is always shown like maximum retail price, जिसको हम कहते हैं MRP. आपको हमेशा कोई भी गुड्स और सर्विसेज में आपको इजीली अवेलेबल दिख जाता है वो, तो वो प्राइस जो होता है वो कंपनी क्या करती है, फिक्स करती है प्रोडक्ट्स के लिए, राइट? अब इसको फिक्स करने का बहुत सारा रीजन है, बिकॉज ऑब्वियसली कि whatever company, whatever work you are doing, whatever company you are running, but for running it for the long time and for the survival, for the growth of the company, we need the revenue amount. ठीक है, हमें पैसे चाहिए होंगे. This is the one of the important P. Why this is the one of the important P? Because in another piece like place, promotion and product, we are incurring the cost. हम cost लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में पैसा लगता है ना हमारे इनिशियल स्टेज में. जब हम उसे उसके लिए प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तब भी हमारा पैसा लगता है. एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए भी हमें कंपनीज, जो एडवर्टीजमेंट की कंपनीज हैं, उनको भी हमें पैसा पे करना पड़ता है. जब हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उसके वेयर हाउस का कॉस्ट, सब कुछ कौन उठाता है? कंपनी उठाता है. तो इन सारे जितनी भी एक्टिविटीज है मार्केटिंग के, उसको बेसिकली फुलफिल करने के लिए हमें हर जगह पैसा पे करना पड़ता है. तो ये पैसा आखिर कहाँ से आएंगे? क्या आप अपने पॉकेट से पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म पे देंगे? नहीं. जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप उसके लिए जो प्राइस लीजिएगा और उसी प्राइस से यू आर एबल टू गेट द रेवेन्यू. उसी प्राइस में आपका रेवेन्यू होगा. रेवेन्यू, और आप लोग तो बीकॉम के बच्चे हैं तो आई गेस सबको समझ में आता होगा व्हाट इज द रेवेन्यू. जो आप कॉस्ट के ऊपर पैसा लेते हैं, जो ओवरऑल प्राइस होता है, तो आप उसी से क्या करते हैं, पैसे को कमाते हैं, उसी से आप पैसे लेते हैं इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
आप अगर अगर मैं बात करूं कि कंपनी के कौन कौन से एक्टिविटीज को प्राइस इफेक्ट करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपके तीनों पीस को जो प्राइस है वो प्राइसिंग को तीनों पीस सॉरी इफेक्ट करता है। एक मिनट। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स आपका होगा, फैक्टर जो प्राइस को इफेक्ट करता है, वो है आपके बाकी के जो 3 पीस है वो, यानी कि प्लेस, प्रोडक्ट एंड आपका प्रमोशन। ये जो तीनों टाइप के मिक्स हैं, उसमें आप कितना पैसा इनकर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पूरे ओवरऑल प्राइसिंग को इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि अगर आपने जो प्राइस है प्रमोशन में, मतलब यानी एडवर्टीजमेंट वगैरह में ज्यादा खर्च किया है, in that case that is going to affect the overall price of the pricing strategy of the company। तो आपके जो तीनों पीस है वो प्राइस को इफेक्ट करते हैं। फिर आपके प्रोडक्ट आप कैसा बना रहे हो, कितना क्वालिटेटिव है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इसका एक होगा रीजन, रॉ मटेरियल कॉस्ट। फिर आपके गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, यानी गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को किस तरीके से फिक्स करने के मतलब क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। तो एक वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गया। फिर आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए कि इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर कोई महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे भी प्राइस आपके इफेक्ट होगा प्रोडक्ट का। क्लियर है ना? अगर आपको इसमें लिखना है तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके सारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गए, सप्लायर यानी जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो अगर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे आपके जो बेसिकली फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करेंगे। और कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपके प्राइस को इफेक्ट करते हैं, तो जैसे आपके सेल्स वॉल्यूम से, यानी आप कितना बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम क्या है आपका, आप कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम हो गया। सेकंड आपका प्रॉफिट मार्जिन, यानी आप कितना प्रॉफिट रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 20 रुपए का प्रोडक्ट का लगा कॉस्ट, आप मान लीजिए पेन बना रहे हैं, आपको उसका जो कॉस्ट लगा है वो 20 रुपीज लगा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना मार्जिन रखते हैं। लाइक आप 20 रुपीज पे 10 रुपए मार्जिन रख के 30 रुपीज में सेल करना चाहते हैं, 20 में 20 रुपीज मार्जिन ऐड करके 40 में सेल करना चाहते हैं। तो लाइक आपका प्रॉफिट का मार्जिन क्या होना चाहिए, ये हो गया एक। नेक्स्ट है आपका बेसिकली एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन तो हो ही गया कि एडवर्टीजमेंट जो आपका कॉस्ट लग रहा है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी आप जब नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका, तो वो तीनों मिक्स जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो तीनों मिक्स में बेसिकली आपका पैसा जो भी जितना भी आपका ये तीनों मिक्स में पैसा लगेगा वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग को इफेक्ट करेगा आपके कंपनी में। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द प्राइसिंग, तो ये तो सारे फैक्टर्स हो गए। आप लिख सकते हो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, अदर 3 पीस, सप्लायर्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब उसमें ही आ जाएगा कॉस्ट। फिर इन्फ्लेशन वगैरह अगर कुछ भी होता है वो, ठीक है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, प्राइसिंग डिसीजंस को। अच्छा, प्राइस तो सबको समझ आ गया कि दैट प्राइस इज द अमाउंट व्हिच वी आर टेकिंग in return of the company is taking in return of product or services, ठीक है, और the consumers are giving that particular amount for taking or exchanging the goods and services. But what is the meaning of pricing? So pricing is basically a strategy. Pricing is a strategy which is used by the company for setting the price. Like pricing is a strategy, it is a process which is used for setting the price in the company. यानी प्राइस एक अमाउंट हुआ, लेकिन प्राइसिंग क्या हुआ कि एक तरीका, एक प्रोसेस हुआ। जहां आईएनजी लग जाए समझ लेना प्रोसेस एंड एक्टिविटीज है। जो कौन यूज कर रहा है, कंपनी यूज कर रहा है, किसको सेट करने के लिए, प्राइस को सेट करने के लिए, प्राइस को सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है XYZ, अब वो कंपनी जो है वो जो भी स्ट्रैटेजी अपनाती है, जैसे यहाँ मैं बता दूं आपको कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत तरीके की होती है, अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी उसको भी। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो किस लिए होता है, प्राइसिंग के अंडर में होता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यानी प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग जो फुल मेथड जो है, ये किस लिए यूज होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को फिक्स करने के लिए या कॉस्ट को फिक्स करने के लिए, कॉस्ट और कह सकते हैं प्राइस को फिक्स करने के लिए। तो ये होता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग इज एक्टिविटी और प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर सेटिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और वी कैन से दैट इज यूज्ड फॉर सेट द प्राइस।
क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया प्राइस क्या है? प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो ऑब्वियसली है कि इन द बाय यूजिंग दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वी आर इजीली एबल टू सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से हम प्राइस सेट कर सकते हैं, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पे एक प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर सकते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से। ग्रोथ मिलेगा प्राइसिंग से, यानी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जब हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा। फिर आप नए प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में अवेलेबल करा सकते हो। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव है दैट इज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, increase the market share in the company, to reach the competitive level in the market, or we can say कि increase the market share, predetermine the profit level कि हमें कितना profit चाहिए। ठीक है, तो प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है उसका जो ऑब्जेक्टिव यही है। लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स लिख लिया आप लोगों ने? रजत, what are the various objective of pricing? What are the various objective of pricing? पहला लिखिए, increase market share, increase market share, increase market share। जितना ज्यादा आपका जो प्राइसिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा कंपनी का, जितना ज्यादा आप रेवेन्यू अर्न कीजिएगा, उतनी जल्दी ही हम मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने एक एरिया में प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया है, आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होने लगा और आपके पास जैसी रेवेन्यू आने लगा, you can do the other activities, like you can explore the other market as well, right? So you can increase the market share by the help of the price, right? First point. Second, growth in sales, growth in sales, growth in sales। मान लीजिए कि आपने बहुत कम, आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत कम क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट थे प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ ही एरियाज में सेल कर रहे थे। जैसे ही प्राइसिंग या फिर जैसे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, यू आर एबल टू मेक मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, राइट? सो ग्रोथ इन सेल्स, और फिर जैसे ही मार्केट में आप ज्यादा अवेलेबल कराएगा प्रोडक्ट को, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट होगा, ग्रोथ इन सेल्स। ठीक है, प्राइसिंग से आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये सेल्स अगर ग्रोथ और सेल्स होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा? इससे दो चीज होगा। पहला तो आप कंपनी आपकी सरवाइव करेगी, कंपनी का ग्रोथ होगा और कंपनी लॉन्ग टर्म तक टिकी रहेगी। इन शॉर्ट वही होगा, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा और सर्वाइवल होगा। यानी तीन चीजेस का आउटकम होगा, कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, सर्वाइव करेगी और एक्सपैंड करेगी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग में आएंगी। उसके अलावा और भी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइसिंग के, वो लिख के। प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट लेवल, प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट लेवल, प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट लेवल। प्रॉफिट लेवल को हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और हमें कितना रिटर्न चाहिए, इसको देखते हुए बेसिकली हम प्राइस को पहले से ही प्री डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी हमें कितना रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, जब हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, देन वहां पर दो तीन टाइप की स्ट्रैटेजी है, जैसे मार्कअप स्ट्रैटेजी है, टारगेट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स है, इसी तरीके से कैलकुलेट करना होता है पर यूनिट का प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना निकलेगा, तो वो भी मैं अभी आपको करवा दूंगी। तो यहाँ पर ये सारे आपके क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। मीट एंड फॉलो द कंपटीशन। ठीक है, अगर आप प्राइस लेवल के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से अगर आप मार्केट में हो सकता है कि मेंटेन कर पाओ प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में, एज वेल एज कंपटीशन, मीट और फॉलो कंपटीशन। इसका मतलब क्या होगा कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में प्राइस को बेसिकली सेट कर सकते हैं, मार्केट के कंपटीशन में बेसिकली अपने आप को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे मोनोपोली राइट्स जो होते हैं वो खैर उतना डीपली हमें नहीं जाना है, बस याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को सस्टेन करने में प्राइसिंग हेल्प करती है।
स्ट्रैटेजी से पहले मैं बता दूं कि जो रूरल एरियाज में प्राइसिंग होता है वो हमेशा कोशिश किया जाता है कि लो प्राइस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएं। अगर प्रोडक्ट्स कुछ एक्सपेंसिव भी हैं तो उसमें जो अल्टरनेटिव्स हैं कि वो आप थोड़ा सा लो कॉस्ट का, इसीलिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन आए हैं आपके, जैसे एक ही टाइप के बाथिंग सोप में वेराइटीज ऑफ लो कॉस्ट भी प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल होता है। रूरल मार्केट में जो प्राइस होता है लो रखना चाहिए, सॉरी, क्योंकि वहाँ के कस्टमर क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। साथ साथ में कम मार्जिन रखना चाहिए, लो प्राइस लो मार्जिन। और जब भी आप नया कोई मार्केट में प्रोडक्ट लाएं तो उसमें आप ऐसे पैकेट्स और ऐसी क्वांटिटी भी लेकर जाएं ताकि कंज्यूमर जो रूरल एरियाज में उसको इजीली अवेलेबल करवा पाए, ठीक है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के जगह पे थोड़ा सस्ता और थोड़ा कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पहुंचाना चाहिए, हमें मार्केट में पहुंचाना चाहिए, यानी कस्टमाइज चेंज कर दीजिए। और ऐसे हैं कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जैसे महाराजा लिमिटेड अप्लायंसेस की कंपनी है, वो उसने क्या किया, वहां पर वॉशिंग मशीन वगैरह जो है ना, वहां लो कॉस्ट के लिए प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने सिर्फ उसमें कोर बेनिफिट्स रखा। यानी कि जो कोर बेनिफिट वॉशिंग मशीन का क्या होता है, कपड़े को धो देना, राइट। उसमें ड्रायर होता है, स्पिनिंग, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस। अभी तो ऑटोमेटिक में मल्टीपल फंक्शंस आर देयर, सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एज सच फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस उसमें वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, बस उसमें बेसिक काम था कि कपड़े को धोने का काम कर रहा था वो वॉशिंग मशीन। एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट फॉर 4 to 5,000 रुपीज हार्डली। तो नॉर्मल प्राइस जो होता है किसी भी वॉशिंग मशीन का, दैट स्टार्टेड विद 10 to 12,000, राइट। एंड वो सिर्फ 4 to 5,000 रुपीज में विद द कोर बेनिफिट वो उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। So if it is possible, we can customize the product as well for selling the product in the low cost in the rural market. रूरल मार्केट में हम प्रोडक्ट का प्राइस को लो करने के लिए कई बार ये भी करते हैं कि हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे और उसमें वैसे फीचर्स नहीं देंगे जो जिसकी वजह से उसका कॉस्ट हाई हो रहा है या फिर कंपनी को लॉस हो। तो हम सिर्फ कोर बेनिफिट के साथ भी प्रोडक्ट को मार्केट में या फिर कंपनीज रूरल एरियाज में कंपनीज जो है वो सेल करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं वहां पर। और बस अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऐसे तो 19 to 20 टाइप्स की हैं, बट हम अभी 3-4 ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आज हम ये दोनों टाइप की प्राइसिंग को कर लेते हैं, क्या होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो कभी भी अगर हम कोई प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में जाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं नए पहली बार, ठीक है, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट फर्स्ट टाइम, और वी कैन से वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, जब हम कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखें स्टार्टिंग में ही ताकि हमें ज्यादा रेवेन्यू मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कस्टमर हमारे बने, ठीक है, कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में लॉस में ना जाए और उसे तुरंत से प्रॉफिट और बेनिफिट होने लगे। और ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जो इसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि व्हेन बेसिकली यू आर टेकिंग हाई कॉस्ट इन द इनिशियल स्टेज फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के लिए जब आप इनिशियल स्टेज में हाई प्राइस चार्ज करते हैं, व्हेन वी आर चार्जिंग द हाई प्राइस फॉर द इन द इनिशियल स्टेज व्हेन वी इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को जब हमने मार्केट में लेकर आए तो हमने मार्केट में उसका इनिशियली यानी कि फर्स्ट स्टेज में, इंट्रोडक्शन के स्टेज में हमने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखा है, इसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जैसे, और ये ज्यादातर कौन सी कंपनीज यूज करती हैं, ये ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल वाली कंपनीज, टेक्नोलॉजी के साथ जो वर्क करती है वो यूज करती है। जैसे मान लीजिए एक फोन है, नया फोन जैसे ही मार्केट में आता है आपकी विद द न्यू टेक्नोलॉजी विद द न्यू फीचर्स, obviously they are taking the high cost for that product, right or not, true or not। अभी जैसे 5G आने वाला, 5G के बहुत सारे मोबाइल्स आ चुके हैं, खैर नेटवर्क नहीं आया बट द मोबाइल्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो आपको पता होगा कि उसका प्राइस अभी भी 15 to 16,000 से नीचे का आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो द इन इनिशियल स्टेज दे आर कीपिंग द प्रोडक्ट प्राइस हाई। और ये कौन कौन सी कंपनीज कर सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है, जो हमेशा अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती हैं, यानी इंप्रूव करती हैं, नए नए फीचर्स को ऐड ऑन करती हैं। या तो वो कंपनी करती हैं जिनका मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा नाम है और अब वो कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, अब वो कुछ नया कभी भी प्रोडक्ट लेकर आएंगी ना तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेगी,
ठीक है। अब रोलेक्स हो गया, रोलेक्स इज ऑलरेडी नाम ही पता है, नाम ही काफी प्रीमियम है। अब वो कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आएगा मार्केट में, तो इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेगा, क्योंकि वो कैप्चर ही किसको करता है, दे आर कैप्चरिंग द, ये किसको कैप्चर करते हैं, ये कैप्चर ही करते हैं प्रीमियम कंज्यूमर को, ये टारगेट ही करते हैं प्रीमियम कंज्यूमर को, ताकि प्रीमियम कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स पे ये ध्यान देते हैं जो कंज्यूमर की इनकम लेवल काफी हाई होती है। तो ये स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का क्या क्या फायदे हैं? पहला चीज कि कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। आप एट द टाइम जैसे ही आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आओगे, वैसे ही आप उसके प्राइस से उसके रिटर्न का जो पैसा है, यानी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप तुरंत से लेने लग जाओगे। हाई मार्जिन रखोगे प्रोडक्ट में, क्योंकि पीपल जो है पैसा रेडी भी है देने के लिए उस प्रोडक्ट का हाई। ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट का वैल्यू ही इतना हाई रहेगा कि ऑब्वियसली दे आर रेडी टू पे, द कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे द अमाउंट फॉर दैट। तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। जब हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है कि हम स्टार्टिंग स्टेज में, यानी दोनों का दोनों जो है पेनिट्रेशन स्कीमिंग इनिशियल स्टेज में यूज आता है जब आप नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो रखेंगे जब आप मार्केट में एंटर करेंगे। प्रोडक्ट का प्राइस आप क्यों लो रखेंगे? ताकि आपका जो बेसिकली टारगेट होगा वो सारे के सारे कंज्यूमर पे होगा, और साथ साथ जो है वो आप चाहिएगा कि आपका तुरंत से मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। यानी कि इनिशियल स्टेज में आप प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं रख, बहुत मतलब बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे, आप लो रखेंगे, ताकि आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो तुरंत से आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाएं। देखो क्या होता है कि जब दो तरीके का प्रोडक्ट है, 500 का और 600 का, तो लोग जो है 600 वाला प्रोडक्ट 500 वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर उनको लगता है कि दोनों की क्वालिटी सिमिलर है। लेकिन यही चीज वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में कंपनी भी ऑप्ट करती है। वो क्या करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्टिंग स्टेज में लो रखती है, ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बने, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हो, बल्क में उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए। ठीक है, और उनका ध्यान प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा नहीं होता है, उनको ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, उनको कंज्यूमर बेस चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बने। तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इन इनिशियल स्टेज द कंपनी विल टेक द वेरी लो कॉस्ट एज कंपैरिजन टू द मार्केट लेवल के हिसाब से बहुत लो कॉस्ट लेंगे वो, ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बने, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हो, और बल्क में प्रोडक्शन एंड बल्क में सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट का। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दोनों क्लियर हो गया। कौन सा यूज किया था प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? जियो मोबाइल्स ने, जियो जो लेकर आया था मुकेश अंबानी ने, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की थी? मैम पेनिट्रेशन यूज किया था, वो 1500 वाला जो फोन लाया था। हाँ, फोन के लिए, फॉर फोन के लिए we can say that they are using the penetration pricing strategy, but for the SIM they use the loss leader strategy. लॉस लीडर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का प्राइस इतना एक्सट्रीम लो रखेंगे कि आपके दुकान में बिल्कुल भीड़ लग जाएगी। और ये चीज हुआ था, आपने देखा होगा कि जियो के सिम को लेने के लिए यूनिवर्सिटी के एडमिशन से भी ज्यादा भीड़ था, समझ रहे हो? तो इट इज द काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजी व्हाई दे यूज सच स्ट्रैटेजी। क्यों उन्होंने इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज किया? और उन्होंने लगभग 1 साल तक तो उन्होंने लगभग फ्री में ही सर्विसेज भी दिया हम लोगों को, है ना। और ये क्यों किया, उसका रीजन बताती हूँ कि पहले ऑलरेडी मार्केट में कौन सा नेटवर्क था? एयरटेल। उसका अच्छा खासा मार्केट शेयर बन चुका था, सर्विस भी उसकी अच्छी थी, नेटवर्क में प्रॉब्लम भी नहीं था। आइडिया एंड वोडाफोन तो थोड़ा रीजनल लेवल तक रह गया था सीमित, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपरली काम नहीं करता था, कुछ रीजन में ही प्रॉपरली काम करता है। जैसे आज भी वोडाफोन है ना, दिल्ली में बहुत ज्यादा उसका डिमांड है कंपैरिजन टू पटना और बिहार में, दिल्ली में बहुत ज्यादा डिमांड है। बट द एयरटेल वाज दैट काइंड ऑफ नेटवर्क जो पूरा ऑलरेडी मार्केट में अपना एक अच्छा खासा मार्केट को उसने कंक्वायर कर रखा था। अब ऐसे केस में अगर जियो नॉर्मल नेटवर्क लेकर आता, बल्कि रिलायंस स्मार्ट ऑलरेडी डूब चुका था, तो ऐसे केस में कोई भी कंज्यूमर उस पर तुरंत से ट्रस्ट नहीं कर पाता। अब उसको ट्रस्ट करवाने के लिए और अपना कस्टमर को बनाने के लिए, क्योंकि ये नेटवर्क जो है वो पूरे के पूरे कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, राइट। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने पहले स्टार्टिंग में फ्री में सिम दे दिया विथ अ हाई, मतलब उन्होंने स्टार्ट ही किया था 3G नेटवर्क से, 3G या 4G से उन्होंने शुरू ही किया था, 4G से
4G से उन्होंने शुरू ही किया था अपना नेटवर्क देना, तो ऐसे केस में कंज्यूमर्स जो थे वो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप चीजें मिल रही हैं, सर्विस मिल रहा है, इतना नेट, इतना इंटरनेट मिल रहा है, तो तुरंत से कंज्यूमर ने क्या किया, खरीदना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने स्विच भी कर लिया अपने अकाउंट को। उसके बाद 1 साल के बाद नाउ दे आर चार्जिंग द अमाउंट, बट द स्टिल कंज्यूमर जो है आज भी जियो के बहुत सारे हैं। ट्रू और नॉट? तो ये स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन से, जब कॉम्पिटिटर से आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी निकालनी होगी ताकि आप मार्केट में क्या कर सके, अपना एक अलग प्लेस बना सके, या फिर कह सकते हैं मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके। कॉस्ट चीजों को दिया कुछ साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई उन्होंने ताकि आप मोबाइल फोन भी ले सके, ठीक है, जियो सिम को यूज करने के लिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, लॉस लीडर स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ क्लियर है ना, ठीक है। तो फिर इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप स्ट्रैटेजी, ओके। तो सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट क्लास।